Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Zoom Shiksha. I am Divya Sharma. I hope you all are good. As you all know, I had started my new series which is based on modern history. Already I had completed part 8 of this series. So today this is our part 9. I hope you all are easily understand this series and hope you like this video. So please share and like my video and also subscribe my channel which is Zoom Shiksha. In the first part I already told you introduction in a nutshell, and in other parts I had completed 2 chapters out of 14. So this video is about chapter 3. So let's start our today's class. सो प्रीवियस क्लास में हमने डिसेनियल सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था विच इज़ ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल. द परमानेंट सेटलमेंट्स वर मेड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, some parts of UP and North Carnatic. They covered 19% of the total area of British India. And our today's topic is the Mahalwari system. Mahalwari system. The company introduced the Mahalwari system in 1822 in western UP, the central provinces, and some portion of Punjab. This statement covered about 30% area of British India. A village or a mahal, a village or a group of villages, was made the unit for revenue settlement. The company needed more and more money to meet its expenses. Therefore, a permanent settlement of land revenue was not the right choice. So, the British government introduced the Mahalwari system in India. विलेज को ही महाल का नाम दिया गया था, मतलब हम विलेज को ही महाल कह सकते हैं. जो होल्ट मैकेंजी थे, एक ब्रिटिश सेक्रेटरी थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ विलेजेस इन नॉर्थ इंडिया क्या है. यानी कि ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द विलेज लैंड एक्चुअली बिलोंग टू द विलेज कम्युनिटी. दिस विलेज कम्युनिटी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. यानी कि इन्होंने विलेज कम्युनिटी को फोकस किया. यानी कि एक विलेज कम्युनिटी होगी जो पूरे विलेज से पेमेंट कलेक्ट करेगी और फिर ब्रिटिश लोगों को लैंड रेवेन्यू देगी. तो फॉर अ जस्ट एंड प्रॉपर सेटलमेंट द विलेज लैंड वॉज इंस्पेक्टेड एंड सर्वेड and a record of rights of land was prepared. The revenue that could be obtained from a particular land was estimated. The estimated revenue of each plot within a village was then added up to calculate the entire revenue. Then a village or a mahal was required to pay. यानी कि इन्होंने एक एस्टीमेट लगा लिया कि इतना हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और उन्होंने वो चीज़ फिक्स कर दी. By a regulation of 1822 itself, the state demand was fixed at 95% of rental. Consequently, this system too failed बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्टेट डिमांड. क्योंकि उन्होंने जो है 95% जो रेंटल था वो फिक्स कर दिया था, उससे ना ऊपर होगा ना नीचे होगा. यानी कि उन्होंने कुल एस्टिमेट लगाया कि इतना यहाँ से कलेक्ट हो सकता है और उन्होंने विलेज कम्युनिटी के ऊपर थोप दिया कि आपको इतना पे करना पड़ेगा, पे बैक करना पड़ेगा. और इसी वजह से ये हमारा जो सिस्टम है वो फेल हो गया. नाउ द नेक्स्ट सेटलमेंट इज़ रैयतवाड़ी सिस्टम or Rayatwadi settlement. This is also known as the Munro system. This system was introduced in the Madras Presidency by Thomas Munro. और सबसे पहले तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी और असम तक भी इसको फैला दिया था. एंड इट कवर्ड 51% ऑफ द एरिया अंडर द ब्रिटिश इंडिया. मुनरो से पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे जिन्होंने ट्राई किया था रैयतवाड़ी सिस्टम को ऑन अ स्मॉल स्केल ऑफ एरिया. ठीक है, बट वो जो एरिया था वो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश से कैप्चर कर लिया था. बेसिकली रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्ट
किसानों से बातचीत करते थे, वो डायरेक्ट पीजेंट्स से बात करते थे, यानी कि बीच में कोई ज़मींदार नहीं होगा जिसके थ्रू वो बात करेंगे, वो डायरेक्ट किसानों से बात करेंगे। इन साउथ इंडिया देयर वर नो ट्रेडिशनल ज़मींदार्स, कोई ज़मींदार्स नहीं थे, एंड द लैंड एक्चुअली बिलोंग्स टू द कल्टिवेटर्स विच इज़ नोन एज राइट्स सिंस generations. Both Munro and Reed therefore felt that the land settlement must be made directly with the peasants. Thus, the system came to be known as Rayutwadi. Here, the revenue to be paid by the cultivator depended upon the quality of land and the crops produced. The land revenue was fixed at 50% of the rental for a maximum period of 30 years, यानी कि लैंड रेवेन्यू को 15% जो है वो फिक्स कर दिया गया. जो पीजेंट्स थे was to be the owner of the land as long as he paid the revenue. But this system was also failed because the state system or the state demand was still high. Now I will show you a map of India. यानी कि आपको जो ग्रीन कलर दिख रहा है वहाँ पे हमारा ऑलरेडी परमानेंट सेटलमेंट था, जहाँ पे ऑरेंज कलर दिख रहा है वहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हो रखा था, और जो रेड कलर है, जो रेडिश और ऑरेंज है, वहाँ पे महालवाड़ी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हो रखा था. ये इंडिया का मैप है जहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया में किस स्टेट में कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रखा था बाय द ब्रिटिशर्स. अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एग्रीगेरियन पॉलिसीज़, यानी कि जो एग्रीगेरियन पॉलिसीज़ ब्रिटिश ने अप्लाई की थी इंडिया में, उनका इम्पैक्ट क्या हुआ था इंडिया की इकोनॉमी पे. तो सम ऑफ द मेजर इफेक्ट्स आर एज अंडर. द फर्स्ट मेजर इफेक्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लासेस. लैंडलॉर्ड्स आर द मीडिएटर बिटवीन द पीजेंट्स एंड द कंपनी ऑफिशियल्स, यानी कि लैंडलॉर्ड जो है वो मीडिएटर्स थे किस किस के बीच में, किसानों के बीच में और कंपनी के बीच में. वही रिस्पॉन्सिबल थे रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, यानी कि किसानों से डायरेक्टली. एंड ऑल थ्रू द स्टेट डिमांड ऑफ रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, यानी कि जो स्टेट डिमांड कर रही थी वो ऑलरेडी फिक्स थी. किसी में 15% थी, किसी में 50% थी, किसी में 95% थी, किसी में 80% थी. वो हर सिस्टम में अलग अलग अपनी फिक्स थी. एंड द जमींदार ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे कुड फ्रॉम द पीजेंट, यानी कि ज़मींदार जितना चाह रहे थे वो उतना पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे. जिसके बीच में क्या होता है कि लैंडलॉर्ड से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि ज़मींदार और लैंडलॉर्ड से छुटकारा पाने के लिए जो किसान हैं उनको हेल्प चाहिए थी मनी लेंडर्स की, यानी कि जो उनको मनी प्रोवाइड कर सके. दस न्यू सोशल क्लासेस लाइक द लैंडलॉर्ड्स, द मनी लेंडर्स, द ट्रेडर्स एंड द पीजेंट्स sprang up. They often got into conflicts for their personal benefit. This is the first major effect of British agrarian policies. Here, second effect is impoverishment of the peasantry. अब जैसे ही इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन होती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, वो रॉ मटेरियल्स को चीप प्राइस में ख़रीदते थे और उनसे मटेरियल बना के हाई प्राइसेस में उन्हीं चीज़ों को बेच देते थे. तो इससे इंडियंस को फ़ायदा नहीं हो रहा था. तो मोस्टली लोगों ने अपना जो पैशन है या फिर कह सकते हैं कि जो उनका पेशा है उन्होंने वही चेंज कर लिया और वो एग्रीकल्चर की तरफ मुड़ गए. Thus, pressure on the land increased and the size of land holdings had to be reduced. Small pieces of land produced less and the peasants were forced to turn to money lenders. Therefore, the zamindars resorted to physical assault and torture for extraction of रेवेन्यू, यानी कि ज़मींदार्स ने प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया और उन पे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया पीजेंट्स पे कि उनको रेवेन्यू चाहिए. दे डिड नथिंग टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. द पुअर पीजेंट्स डिपेंडेड एंटायरली ऑन द मानसून्स, कि अगर मानसून अच्छा होता है तो उनकी फसल अच्छी हो जाएगी और मानसून अच्छा नहीं होता है तो उनकी फसल वैसी की वैसी रहेगी और उन्हें रेवेन्यू तो फिक्स्ड उस पर पे करना ही है. तो इसलिए जो है पीजेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई थी. नाउ द थर्ड मेजर इफेक्ट is
डिसइंटीग्रेशन ऑफ विलेज कम्युनिटीज़। जो किसान थे वो फोर्स किए जा रहे थे कि अपनी लैंड होल्डिंग्स को वो छोड़ दें और दूसरी प्लेसेस पे चले जाएं इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यूज़, कि अगर उन्होंने रेवेन्यूज़ को पे नहीं किया तो वो अपनी जगह को छोड़ दें। दिस रिजल्टेड इन द ब्रेक डाउन ऑफ द ट्रेडिशनल विलेज कम्युनिटी, और इसी के साथ जो ट्रेडिशनल विलेज कम्युनिटीज़ थी वो ख़त्म हो जाती हैं। द जॉइंट फैमिलीज सफर्ड अब अलॉट। The village artisans too had to make product suitable for the foreign markets. Thus, they too were transferred from skilled workers to wage laborers, यानी कि वो skilled workers से wage laborers बन जाते हैं. And the fourth effect is rural indebtedness. अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ज़मींदार्स थे वो फिक्स्ड प्राइस पे किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और किसानों के पास इतना पैसा होता नहीं था तो उन्हें मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था। तो इसी के साथ मनी लेंडर्स भी किसानों को परेशान करने लग गए कि वो उनका पैसा वापस करें, और मनी लेंडर्स हाई रेट चार्ज करने लगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किस पे, अपने पैसे पे, जिससे जो है किसान वो पे बैक नहीं कर पाए उनको। और इन केस अगर जो फार्मर्स थे वो पे बैक नहीं कर पा रहे थे, यानी कि पेमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो उनकी जो लैंड थी वो मनी लेंडर्स अपने कब्जे में ले लेते थे। और इसी के साथ जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने फ्रॉड जो है रजिस्टर भी रखने स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि वो फॉल्स अकाउंट रखने लगे थे और उन्होंने जो मतलब जितने फार्मर्स पैसे लेते थे उससे ज़्यादा वो पैसे को लिख देते थे ताकि वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर सके। और जिससे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विलेज की लैंड थी वो मनी लेंडर्स के कंट्रोल में आ जाती है, और इसी के साथ फार्मर्स का जो एक्सप्लॉइटेशन है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट इज़ ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। इस इफेक्ट में क्या होता है कि जो भारतीय किसान थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे मार्केट के लिए, यानी कि खुद के लिए वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे क्रॉप्स को, वो मार्केट के लिए यानी कि बेचने के लिए वो सब कर रहे थे। और वो कौन सी फसलों को उगाते थे जिससे ब्रिटिशर्स को फ़ायदा होता था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स की डिमांड होती थी वो उन क्रॉप्स को ही ग्रो करते थे, जैसे कि कॉटन, जूट, इंडिगो, ऑयल सीड्स, वीट, शुगर केन, कॉफ़ी एक्सेट्रा। और इनमें से कुछ क्रॉप्स ऐसी थी जिससे जो लैंड है वो इनफर्टाइल होती चली गई थी, यानी कि उससे लैंड को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, पर ब्रिटिश को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था और उनकी डिमांड उसके लिए बहुत ज़्यादा थी। तो फार्मर्स को जो है वो उगानी ही पड़ रही थी क्योंकि ब्रिटिश उन पर प्रेशर बना रहे थे। जो फार्मर्स थे वो डिपेंड थे मिडल मैन पे फॉर द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ताकि जो सेल है वो मिडल मैन उनके प्रोडक्ट्स की करे, वो मिडल मैन उनके प्रोडक्ट्स की सेल करते थे, इसलिए जो किसान थे वो उन पर डिपेंड थे। और जो मनी लैंडर्स थे वो किसानों से लो प्राइस में तो क्रॉप्स को ख़रीदते थे और हाई प्राइस में उनको बेचते थे, जिससे उनको बहुत सारा प्रॉफिट होता था। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, और अभी बस एक वीडियो और बनेगी चैप्टर 3 से रिलेटेड, और इसी के साथ फिर हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।